Good morning, people. It's 6 o'clock in the morning right now, and we thought of catching a sunrise. तो हमने जहाँ पे होम स्टे लिया वहाँ से व्यू पॉइंट अच्छा था, तो हम वहीं पे थे. This is how it looks. Sunrise right there. It's so cloudy that we are not able to see the sunrise properly, but the view is so beautiful that it's worth it. So, people, early morning we came to a viewpoint which was suggested to us by our homestay manager. तो व्यू कुछ ऐसा है. There you can see the Erkud Lake right there, and this is the town Erkud. Guys, हमारे होमस्टे वाले ने हमको चाय दी थी यहाँ पे. चाय तो अच्छा लग रहा है भाई देख करके मेरे Well, to all the chai lovers out there, भाई क्रेजी इतना हो चाय के लिए कि इसी ऐसे ऐसे व्यू पे आके चाय पियो. क्रेजी नहीं हो तो कम से कम इधर तो आके पियो ही पियो. सो गाइस, यहाँ पे हमारा हो गया स्टे कंप्लीट और यहाँ से हम निकल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन में. थैंक यू सर. ये थे हमारे यहाँ के मैनेजर, उन्होंने हमारा पूरा ध्यान रखा. तो बस अभी वक्त आ गया है हमारे अगले पॉइंट पर जाने का. तो द टाइम इज समवेयर अराउंड 8 o'clock एंड हम जा रहे हैं हमारे ब्रेकफास्ट के लिए सबसे पहले. उसके बाद हम जाएंगे हमारे व्यू पॉइंट वगैरह. तो आई सी यू देयर. It's time for breakfast and we are a pretty famous place. I think it's quite crowded. आपको बाद में बताऊंगा जब मैं exit करूंगा. But yeah, let's see. So this is my breakfast for the day. Keeping it light. I heard that masala dosa is famous of this place. तो भाई चलो ट्राई कर लेते हैं थोड़ा. टेस्ट अच्छा, चटनी वगैरह अच्छा. Good, should try, must try. So we had our breakfast in Karuppa Chettinad Mess. That was the place where we had our breakfast. Now heading towards our next destination, which is a waterfall. The route to this next destination, so smooth and so greenery और full of curves. मजा आ रहा है. This is the parking place for this falls. Now I think we have to walk till the falls, and this whole parking lot is for the cars. So well, there's plenty of space here. One car, 3 bikes. They took 100 rupees. So we have a 750 meters walking to the falls. सही बोला भाई ने, पाताल लोग जा रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि भाई गाड़ी की पार्किंग जहाँ पे फॉल शुरू होता है वहाँ पे है और हमें ये लोग लेके जा रहे हैं जहाँ पे फॉल्स गिरता है एकदम. तो इतना ऊपर से पूरा नीचे लेके जा रहे हैं. ओके, सो वी हैव मंकीज हियर एज वेल. तो भाई ध्यान रखना, खाना पीना कुछ मत लेके आना यहाँ पे. ऑलराइट, सो गाइज हम पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन पे और उसका नाम है किलियूर फॉल्स. फॉल्स काफ़ी कम है बट है. तो गाइज फॉल्स एकदम वहाँ से शुरू हो रहा है और पूरा ऐसे आ रहा है यहाँ पे एंड देन इट गोज डाउन समवेयर. ओ भाई बहुत ठंडा है, भाई बहुत ठंडा है. अरे वाह.
गाइस चढ़ना ना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, टू मच ऑफ स्टीप, ठीक है। ऑलराइट पीपल, सो आफ्टर द ट्रैक आई एम बैक इनटू माय राइडिंग गियर्स। तो अब हम किलियोर वाटरफॉल से निकल चुके हैं एंड जा रहे हैं आज के हमारे आखिरी डेस्टिनेशन पर, जो कि है लगभग 4.5 किलोमीटर दूर। Okay, so again for our next destination, we've got this beautiful curvy road. यहाँ पे चलाने में उतना ही मजा आ रहा है, and we have some food as well. Okay, so our next destination is the Sky Park. ಇಲ್ಲಿ 1000 rupees ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಇದು ಪಗೋಡಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋಣ. Okay, so guys, this Sky Park, it is some 1000 rupees per person thing. I'm sure there might be a lot of things, but we have no time for that, and that's why we are going to a last viewpoint, that is the Pagoda Point, and it's 2.5 kilometers from here. Moreover, Yerakud was told by our manager at the homestay, we need at least 2 days to explore it completely. So that's the reason we're not going to Sky Park right now, because we have to head back to Bangalore. And we are here at our final destination, the Pagoda Point. So I have parked my bike. This is the entry of Pagoda Viewpoint. अंदर आते ही आपको राइट में दिखेंगे काफ़ी एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस और लेफ्ट में आपको मिलेगा काफ़ी सारा फूड ऑप्शंस. इन एंड ऑल इट्स अ वेरी गुड स्पॉट फॉर पिकनिक. So guys, this is the Pagoda viewpoint, and I think यहाँ पे रात को या फिर इवनिंग में ना सिटी लाइट्स देखने में मजा आता है. कल हम ट्राई कर रहे थे कि भाई वो घाट सेक्शन पे उतर के दैट वी फाइंड सम पॉइंट वेयर इन वी कैन सी ऑल द सिटी लाइट्स ऑफ सेलम, जो कि हमें मिला, बट दैट वाज ओके. बट आई थिंक इफ यू कम हियर इन द इवनिंग इट विल बी ओपन, एंड तुम लोग यहाँ से इवन बेटर व्यू देख सकते हो, क्योंकि लिटरली पूरा सिटी आपको दिखेगा यहाँ से, इवन टिल द पॉइंट वहाँ पे थोड़ा सिटी का पार्ट है वो भी दिखेगा, एंड देन यू कैन सी दिस होल एरिया. इट इज सो ब्यूटीफुल. तो भाई रात को चमकेगा भाई, इट्स लिटरली ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ, तो भाई इट मेक्स इट अ ग्रेट वैंटेज पॉइंट फॉर अस टू हैव अ व्यू. ऑलराइट पीपल, तो हमारा पगोड़ा पॉइंट का विजिट हो गया है कंप्लीट, एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक डाउन द Yerakud Ghat towards Bangalore. So that will be our last ghat section now. Let us enjoy it as much as we can, is what I plan to do. अभी हम लोग तैयार है Yerakud के घाट से नीचे उतरने के लिए, एंड सिंस घाट से नीचे उतर रहे तो हमारा स्पीड स्लो होने वाला है, इसलिए मैंने क्या किया है कि 360 को यहाँ पे मोटरसाइकिल माउंट से यहाँ पे लगा दिया है, तो व्यू भी अच्छा आएगा. एक तो मेरा भी अच्छा वीडियो आएगा थर्ड POV से, और मेरे दोस्तों का भी अच्छा वीडियो आएगा. तो भाई लोग तैयार हो? लेट्स गो. तो चलो भाई.
तो गाइज हम अभी फाइनली नीचे आ गए पूरा एंड दिस माउंट वर्कड लाइक अ चार्म फॉर मी एंड फॉर माय बडी पूरे अच्छे वीडियोस आ गए हैं एंड नाउ विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक विल ड्रिंक सम जूस और वाटर एंड ऑल एंड देन विल गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लंच पॉइंट जहाँ पे हमारे बाकी साथी भी हमें मिलने वाले हैं। चलिए मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। वी आर हैविंग अ बर्गर एंड अ पनीर सैंडविच लुक्स गुड। All right, so people, after having a quick break for some snacks and juice, we are now back on our route. We are now going to the place where we had given our friend's bike that had damaged a couple of days ago. After we pick his bike, we will be heading straight to Bangalore. भाई क्या लग रहा है यार guys just look at this area man just look at this area so beautiful so guys we are entering into Manigam Reserve Forest. All right guys, a couple of days ago we were on that side of the road stuck in traffic and looking on this side where people are moving freely. The reason is still the same today as well. जब हम फंसे थे तब भी एक्सीडेंट हुआ था, जब अब ये लोग फंसे हैं तब भी एक्सीडेंट हुआ है. So this particular road is famous for accident. So whenever you are here, be very careful while you are riding. लो भाई अभी अरे बाप रे भाई साहब कितना लंबा जाम है बे. Okay, so finally I think it's 1.1 kilometer or 1.2 kilometers यहाँ तक का ये जाम लगा हुआ है and all because of one accident that happened. कि भाई I think something a ट्रक का कुछ एक्सीडेंट हुआ था आई गेस, तो भाई उसके वजह से ना लंबा जाम लगा हुआ है. तो गाइस हमारे किरण भाई की गाड़ी वापस रेडी होके आ गई है लेकिन ट्रिप खत्म हो गया है. तो भाई का जो गेयर लीवर था वो कट होके आ गया था क्योंकि हमारे ही बंदे ने उनको पीछे से ठोक दिया था. तो लेकिन अब गाड़ी रेडी हो गई है. So we three guys have started our journey back after picking up the bike, and now we will be heading to Bangalore, which is around 90 kilometers from here. So maybe another 2.5 hours. All right, so guys, we are now on National Highway 844. तो इस हाईवे पे अब हम लगभग राइड करने वाले हैं समवेयर अराउंड 70 किलोमीटर्स. इस हाईवे के बारे में मैं कुछ ऐसा कहना चाहूंगा कि भाई आजकल मैंने काफी वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होते हुए कि कोई डाल रहा है कहीं हमारा हाईवे टूट गया है या फिर कहीं खड्डा हो गया है या फिर हाईवे की क्वालिटी अच्छी नहीं है. बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दिस हाईवे हैज बीन स्पेक्टेकुलर. दिस रोड इज सो स्मूथ कि भाई हमको जरा भी वाइब्रेशन नहीं हुआ. सो पिछले 2 दिनों में जितना हमने राइड किया somewhere around 100 kilometers was on national highways and we felt so good riding on the highways कि भाई पता नहीं मुझे कि लोग क्यों फालतू में इतना क्रिटिसाइज करते हैं. भाई क्रिटिसाइज करना इज गुड, दैट्स अ वे ऑफ शोइंग द गवर्नमेंट कि भाई उनकी कहाँ कमी है. बट प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं एंड कभी भी किसी भी डेवलपमेंट को हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते एंड जिसकी वजह से रोड्स लाइक दिस आर वेरी वेरी लेस अप्रिशिएटेड. भाई ये रोड इतना प्यारा बना हुआ है, चारों तरफ इतनी अच्छी सीनरी है, पूरा क्लीनलीनेस है एंड देयर आर बैरिकेड्स along the highway which you know kind of feel gives you a safety feeling. तो भाई ये सब होते हुए भी हम सब उन नेगेटिव चीजों को इतना हाईलाइट कर देते कि भाई पॉजिटिव्स ऑलवेज गेट फॉरगॉटन. तो नेगेटिव चीज भाई हर बार सबसे ज्यादा जल्दी फैलेगी, दैट्स अ फैक्ट. लेकिन हमें ये देखना है कि भाई इज इट रियली दैट मच नेगेटिव. हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई रोड खराब नहीं है या फिर रोड एकदम ही सब बढ़िया है हर जगह, नहीं ऐसा नहीं है. वी आर इन अ डेवलपिंग फेज, तो भाई होगा कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग्स होगी. बट जहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है वहां को अप्रिशिएट करना इज रियली इंपॉर्टेंट. तो भाई ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सो फार एंड आई होप आप लोगों का भी एक्सपीरियंस हुआ होगा. सो वेल, whenever you feel good, whenever you see something positive, do share it जैसे कि मैंने आज किया. तो looking forward for your opinions as well. And that's about it. So another 60 kilometers left for our home. And now suddenly the weather is also changing. भाई लगभग लगभग पूरे ग्रे ग्रे बादल आ चुके हैं हमारे सर के ऊपर. तो लग रहा है कि बारिश होने वाली है. लेकिन हमने हमारा रेन गियर पैक किया है तो हमें किसी चीज का इतना डर नहीं है. तो चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या. बारिश हो रही है बहुत भयंकर. सडनली स्टार्टेड रेनिंग. हाँ
भाई उधर बारिश हो रही है भयंकर वाली। अबे रेनकोट के लिए रुका तू? भाई वो सिर्फ उस ब्रिज पे था भाई बारिश। भाई उसमें भी आधा मिनट गया था। लेकिन बूंदे बहुत बड़ी बड़ी थी बे। चोट लग रहा था भाई मेरे को। बेटा टप 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 गिर रहा है। मेरे को इधर चोट लग रहा है भाई, तुम लोग के पास तो जैकेट था। अबे मत खोल भाई, आगे फिर से पहन के आगे फिर से मिलेगा तो क्या करेगा? हाँ रहने दे। ओके लगता है यहाँ पे कुछ लफड़ा हुआ है। ओ भाई क्या लेके जा रहा है भाई ये? भाई साहब क्या है ये? पावर 3 हाइब्रिड कुछ है भाई साहब, इतनी व्हीलें है इसके। Damn. Right now I'm in Tamil Nadu. Is you also? And right now I'm into Karnataka. यहाँ पे हम कर रहे हैं फिक्स स्नैक्स एंड इट्स प्योर वेज होटल। सबसे पहले आती है, हमने अपनी चाय मंगवा ली है आफ्टर सच अ गुड राइड। इंपॉर्टेंट थिंग इज चाय। भाई ने तो एकदम लाइम सोडा मंगवा दिया है, स्वीट एंड सॉल्टी। यहाँ पे उनको सर्विंग मिलती है। हमने मंगवाया एक पनीर बिरयानी और एक हैदराबाद बिरयानी। तो भाई मजा आएगा। तो हमने यहाँ पे अपना स्नैक्स कर लिया एंड नाउ वी आर जस्ट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होम। सो आई सी यू व्हेन आई रीच देयर। चले। ऑलराइट पीपल, तो आज का राइड हमारा होता है कंप्लीट। दीज आर माय कलीग्स हियर। बाकी सब अपने घर पहुंच गए। तो वेल दैट वाज अ गुड 2-day राइड। ऑलराइट पीपल, सो मैं पहुंच गया अपने घर एंड इट वाज अ क्रेजी ट्रिप। ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी ट्रिप था। एंड टोटल किलोमीटर दैट वी डिड इन दिस ट्रिप वाज 688.8। सो काफ़ी मज़ा आया। ठीक है, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, मेरी गाड़ी बंद पड़ी या फिर मेरे दोस्त की गाड़ी ख़राब हुई, हमें एक दूसरे को डबल लेके जाना पड़ा, बट एट द एंड एवरीथिंग वाज वर्थ दिस ट्रिप। दिस इज़ माई साइन ऑफ मैसेज कि अगर आपके पास 2 दिन या 3 दिन की छुट्टी हो तो जो ये प्लान मैंने अपनाया है, फ्राइडे को निकलना, सैटरडे संडे वहाँ पे घूम के वापस आना, सो इट्स अ परफेक्ट प्लान। और इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हुए मैं मोहित जैन और मेरी वासुकी आपको फिर मिलेंगे एक नए वीकेंड ट्रिप पर।